So, very good afternoon to all of Okay, you. sir. Very welcome to the physics live class. So, we are just continuing from the spring force and the potential energy stored in the spring. So, coming to spring force. The spring force. So, spring force is given by the Hooke's law. So, according to the Hooke's law, whatever the force will be acting on the spring, or whatever the force acted by the spring will be directly proportional to the negative of displacement. You can just understand in this way. Suppose this is a spring and attached with mass m. Okay, this is at a mean position. Mean position means what? It is at rest, at equilibrium position. This is a mean position. Okay, so this is a mean position. If you are stretching the spring, if you are stretching the spring, okay, then this become a extreme position. This is बच्चे extreme position. Extreme position. And you know the displacement, direction of displacement is this. This is direction of displacement. Displacement. And the force, spring will try to move this object at this side. So here will be the spring force. And when you compress this spring, when you compress this spring, it will be here. And now the direction of displacement is this. This is direction of displacement. But the spring force will be acting in this direction. This is basically the spring force. The spring force. Okay, so from here you can say the spring force is directly proportional to negative of the displacement. Okay, so these are basically bache, these are the two positions which are obtained during the expansion and compression of the spring. अगर स्प्रिंग को हम कंप्रेस करते हैं बच्चे तब भी ये एक्सट्रीम पोजीशन पे जाता है. तो इस केस में बच्चे अगर डिस्प्लेसमेंट की मैं बात करता हूं तो अगर यहाँ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट प्लस ए हो जाता है, इस केस में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट माइनस ए हो जाता है, और इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट होता है बच्चे जीरो होता है, मीन पोजीशन पे जीरो. तो हमने क्या कह दिया बच्चे, और ये देखा कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन हमेशा अपोजिट होती है. तो ये प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं बच्चे, तो एक कांस्टेंट आता है के एक्स, वेयर के इज spring constant. K is your spring constant. Okay, so this is your F is equal to minus Kx. Okay, so if it is your spring force, or means you can say the force acted by the spring on an object when it is compressed or expanded. So we can just draw the graph of this force and displacement, graph of the force and displacement. How it can be drawn? Let's see it. This can be drawn like this. And in this axis, this will be force. Here it will be displacement. Okay, this is your force and displacement graph, F and X graph. So the next concern is, next topic from in this is your the potential energy in the spring. So potential energy in the spring. Potential energy in the spring will be the work done to extend or compresses. Potential energy of
a spring. You can say the work done to stretch or compress the spring is stored in form of potential energy of a spring. Potential energy of a spring. This will be stored in form of potential energy of a spring. Okay, so let's see it further how we can just obtain this equation. So please show again one page, previous page. Okay, wait for a minute. It's only 1 minute. Okay, it is visible. Both not at corners. Okay, wait for a minute. Only half. So it is important. So 1 minute. Yeah, this is the basically case of the extension and you can say the compression. So let's see how we can just calculate the potential energy stored in the spring. So in this page, let's see it. Potential energy stored in a spring. सो कैसे निकाल सकते हैं बच्चे? लेट्स सी इट. सो वर्क डन जितना करना पड़ेगा, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स. सो वर्क डन बाय spring force. So to extend or compress, तो वर्क डन को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बच्चे? दिस कैन वर्क डन बाय स्प्रिंग कैन बी रिटन एज extension 0 to x and this is equal to spring force into dx. This will be the case, and you know well the spring force is minus kx or this is dx, and when you will integrate it 0 to x, so this will be your minus kx square by 2. This is a potential energy associated with the spring. Okay, because this is a potential energy, or you can say the work done by the spring force, but the work done by external force. अगर बच्चे एक्सटर्नल फोर्स की बात करेंगे तो उस समय जो स्प्रिंग फोर्स होता है वो स्प्रिंग फोर्स के अपोजिट होता है, जो एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा वर्क डन होता है, तो वो क्या हो जाता है बच्चे? वो पॉजिटिव होता है. बट द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स is W is equal to plus kx square by 2. क्योंकि स्प्रिंग फोर्स तो हमें पता है बच्चे Fs इक्वल टू माइनस के एक्स, लेकिन हम जो फोर्स लगाएंगे इसके इक्वल एंड अपोजिट लगाते हैं. तो हमेशा याद रखिए कि अगर कभी भी आपको वर्क डन फाइंड करना है बच्चे, या पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग फाइंड करना है बच्चे, तो जो भी हमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दिया जाएगा उसका एरिया फाइंड कर लेंगे तो मिल जाएगा. मतलब वी कैन राइट हियर पोटेंशियल energy associated with spring can be calculated by finding area under fx graph.
एरिया अंडर एफएक्स ग्राफ का अगर हम एरिया फाइंड कर लेंगे बच्चे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का तो हमें मिल जाएगा। अगर मान लीजिए बच्चे अगर ये कहा जाए कि वर्क डन फ्रॉम स्ट्रेचिंग फ्रॉम वन पोजीशन टू द अनदर पोजीशन, वर्क डन from work done for stretching spring from x1 to x2, अगर बच्चे मैंने इसको एक्सटेंड किया कहां से x1 से लेके x2 तक या फिर x इनिशियल से लेके x फाइनल तक, तो उसके लिए अगर आप बात करेंगे बच्चे वर्क डन बाय स्प्रिंग बात करेंगे तो यहां पे जब भी लिखेंगे वर्क डन बाय स्प्रिंग ये dx, जब यहां इंटीग्रेशन करने लेंगे बच्चे तो ये x1 से लेके x2 तक का करेंगे बच्चे। तो व्हेनेवर इट विल बी कमिंग, जब भी ये आएगा बच्चे इसको जब आप करेंगे तो इट विल बी माइनस के एक्स स्क्वायर बाई 2, और यहां पे बच्चे लिमिट रखेंगे क्या x1 से लेके x2, तो वर्क डन बाई स्प्रिंग जो हो गया अपर लिमिट रखा जाए बच्चे, अपर लिमिट इज योर कितना हो जाएगा x2 माइनस लोअर लिमिट, तो दिस विल बी माइनस के x2 स्क्वायर बाई 2 माइनस माइनस प्लस के x1 स्क्वायर बाई 2, दिस विल बी वर्क डन बाई द स्प्रिंग। अच्छा एक चीज और याद रखिएगा बच्चे, वर्क डन बाई द स्प्रिंग फोर्स इन अ साइक्लिक प्रोसेस इज जीरो। मतलब ये हुआ कि अगर किसी स्प्रिंग को आप स्ट्रेच करिए फिर कंप्रेस करिए, एक साइकिल कंप्लीट हो गई बच्चे, तो इसके लिए वर्क डन क्या हो जाएगा बच्चे जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये साइक्लिक प्रोसेस जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, या फिर दूसरे तरीके से आप बात करेंगे बच्चे तो डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा वर्क डन जीरो हो जाएगा। वी कैन राइट हियर Yes. work done by spring force in a cyclic process is जीरो, ये हो जाएगा बच्चे। अच्छा दूसरा याद रखिएगा बच्चे कि जो स्प्रिंग फोर्स होता है वो कंजर्वेटिव फोर्स होता है। क्यों कंजर्वेटिव क्यों होता है बच्चे, क्योंकि ये किस पे डिपेंड करता है बच्चे, इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है। Final. हाँ वर्क डन या फिर स्प्रिंग फोर्स is conservative because work done by it is dependent on initial and final point। तो ये इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है, ना कि पाथ पे डिपेंड करता है। ओके तो अब बच्चे जरा देख लेते हैं कि जरा इसको समझने का प्रयास करिए बच्चे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को कैसे ये फॉलो करता है ना। अगर मान लीजिए किसी भी स्प्रिंग को हम क्या करें एक्सटेंड करें, मतलब मैक्सिमम एक्सटेंड करते फिर वहां से क्या करते हैं बच्चे छोड़ दें, जब छोड़ देंगे बच्चे तो जितनी इसके पास इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होगी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी बच्चे, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, है ना। ये लिख सकते हैं अगर लेट्स से if a spring is stretched by distance xm से अगर बच्चे इसको स्ट्रेच कर लिए and then released, अच्छा रिलीज कर देंगे बच्चे तो क्या हो जाएगा बच्चे, then according to conservation of energy कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से बच्चे क्या हो जाएगा, ये जरा देखा जाए कि मान लीजिए ये कंडीशन थी कि इनिशियली स्प्रिंग जो थी वो स्ट्रेस थी, ये ऐसे थी, अब इसको छोड़ दिया गया बच्चे, तो अब छोड़ दिया गया यहां से तो ये स्प्रिंग यहां पे आ गई,
यहां पे मास आ गया इसका। तो अब देखिए ये जो एक्सटेंशन था मीन पोजीशन से, ये जो एक्सटेंशन था वो XM था, अब कहां पे आ गई ये बच्चे, X डिस्टेंस पे आ गई। कितने डिस्टेंस पे आ गई बच्चे, तो अब पहले हमने यहां तक एक्सटेंड किया, अब यहां पे आ जाएगी बच्चे। तो इसका मतलब पहले इसके पास पोटेंशियल एनर्जी थी कितनी, हाफ के XM स्क्वायर। जब यहां छोड़ेंगे बच्चे तो ये इधर की तरफ जाती रहेगी, इसके पास कुछ वेलोसिटी रहेगा, तो इसके पास क्या हो जाएगा बच्चे, काइनेटिक एनर्जी भी होगा हाफ mv स्क्वायर, और क्या हो जाएगा बच्चे, हाफ kx स्क्वायर भी हो जाएगा। बोलिए होगा कि नहीं होगा, बोलिए। अगर यही बच्चे स्प्रिंग वापस होके कहां पे चली जाए, मीन पोजीशन पे, ये x इक्वल टू 0 है, इफ स्प्रिंग reaches at मीन पोजीशन, अगर मीन पोजीशन पे चली जाए बच्चे, वेयर x is equal to 0, so k half k xm square will be equal to half mb square। so उस समय हम क्या लिख सकते हैं बच्चे, so all PE, और कह सकते हैं कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। और यहां से बच्चे अगर ये आ गया तो वेलोसिटी आप निकाल सकते हैं। इस समय जब आएगा यहां पे, इस पॉइंट पे जब पहुंचेगा, इसके इस ऑब्जेक्ट के पास मैक्सिमम वेलोसिटी रहेगा विच विल बी टेंडिंग टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन। तो इसका मतलब ये वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी, सो दिस इज मैक्सिमम वेलोसिटी, सो Vm लिख रहे हैं। तो Vm कैन बी रिटन एज अंडर रूट, this will be your k by m into xm. This will be the velocity achieved by the particle when it reaches at a mean position. इसका मतलब ये होगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को हम जरा समझे, इसका ग्राफ बनाना चाहें, किसके लिए, स्प्रिंग के लिए ग्राफ बनाना चाहें तो क्या होगा, इसको जरा देखते हैं। सो कंजर्वेशन of energy in spring, लेट्स सी इट बच्चे, कि मैंने कहा स्प्रिंग अगर नॉर्मली देखा जाए, बनाया जाए यहां से, ये स्प्रिंग का मीन पोजीशन हो गया बच्चे, हाँ ऐसे बना लिया जाए, इसको हम क्या कर दे रहे हैं बच्चे, मीन पोजीशन। अच्छा मीन पोजीशन, अगर मान लीजिए इसको बच्चे कंप्रेस किया जाए, ये कंप्लीटली कंप्रेस है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है, तो इसको क्या बोल देंगे बच्चे, एक्सट्रीम पोजीशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम। अगर बच्चे इसको स्ट्रेच किया जाए, ये भी इसका क्या हो जाएगा बच्चे, एक्सट्रीम पोजीशन हो जाएगा। दिस विल बी आल्सो अ एक्सट्रीम पोजीशन। अंतर क्या होगा बच्चे इसमें, एक्सट्रीम पोजीशन, कि ये स्ट्रेच हुआ है, ये कंप्रेस हुआ है। यहां मीन पोजीशन पे x इक्वल टू 0 है, और इस समय x इक्वल टू देखिए इस डायरेक्शन में है, x इक्वल टू प्लस a है, और यहां पे जो हो जाएगा बच्चे इस कंडीशन में जो है x इक्वल टू माइनस a है। बस डिफरेंस यही है। तो आपको पता है बच्चे, मीन पोजीशन पे आपको पोटेंशियल एनर्जी आपकी क्या हो जाएगी, इसमें 0 हो जाएगी, लेकिन काइनेटिक एनर्जी क्या होगी बच्चे, मैक्स होगी। लेकिन जब यहां पहुंचेगा बच्चे, इसके पास काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी बच्चे, मैक्स हो जाएगी। मैक्स। और यहां भी वही चीज हो जाएगी बच्चे,
कि जब ये एक्सट्रीम पोजीशन पे इस तरफ पहुंचेगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, वंस अगेन 0 एंड पोटेंशियल एनर्जी योर मैक्स हो जाएगी। तो अगर इसका ग्राफ देखा जाए बच्चे, लेकिन टोटल एनर्जी तो कांस्टेंट है, तो अगर इसको देखा जाए बच्चे तो ये कुल मिला के ग्राफ अगर ये ग्राफ देखा जाए बच्चे तो ये हो गया आपका मीन पोजीशन, दिस इज मीन पोजीशन, और ये एक्सट्रीम पोजीशन के x इक्वल टू माइनस ए हो गया, और ये क्या हो गया बच्चे, x इक्वल टू प्लस ए हो गया। तो ये ग्राफ किस चीज का है बच्चे, काइनेटिक एनर्जी का है। काइनेटिक एनर्जी आपका एक्सट्रीम पोजीशन में क्या होता है, 0 होता है ना, के का ग्राफ हो गया। और पी का अगर ग्राफ देखिए बच्चे, पी जो है मीन पोजीशन पे 0 होता है, तो इट विल बी लाइक दिस। ए ए ए ए ये हो जाएगा बच्चे, दिस इज बेसिकली पीज ग्राफ। और जो टोटल एनर्जी हो जाएगी बच्चे, ये देखिए, ये जो हो जाएगा दिस विल बी योर, ये ग्राफ किसका हो जाएगा बच्चे, टोटल एनर्जी का ग्राफ हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। क्लियर है बच्चे? ओके, दिस इज द केस फॉर द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन स्प्रिंग। स्प्रिंग में भी देखिए टोटल एनर्जी कंजर्व है। यहाँ पे देख लीजिए ना बच्चे, अगर इस पॉइंट पे अगर बात करिए, जो टोटल एनर्जी हो जाएगी, टोटल एनर्जी किसके बराबर हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाती है। और काइनेटिक एनर्जी इस समय क्या हो जाती है, 0, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं ना, यहाँ के की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। यहाँ पे देखिए, यहाँ किसकी वैल्यू 0 हो जाएगी बच्चे, यहाँ वैल्यू हो जाएगी 0, पीई की 0। यहाँ भी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी बच्चे, 0। तो इस तरह से एनर्जी का कंजर्वेशन पूरा क्या होता है, चलता रहता है। पूरा ये साइक्लिक प्रोसेस है, पूरे साइकिल में ये टू एंड फ्रो होता रहता है। ओके, अब बात करते हैं बच्चे वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। देखिए कौन कौन से फॉर्म ऑफ एनर्जी हैं और कहां से प्रोड्यूस होते हैं, इसको जरा समझा जाए बच्चे। वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। देखिए कौन कौन से वेरियस फॉर्म्स होते हैं एनर्जी के बच्चे। एक तो सबसे पहला अगर देखा जाए, क्योंकि हमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पता है ना बच्चे, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना एनर्जी को हम क्रिएट कर सकते हैं बच्चे, ना एनर्जी को हम क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। बस कर क्या सकते हैं, एनर्जी के फॉर्म को चेंज कर सकते हैं। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी को क्या कर देंगे बच्चे, चेंज कर देंगे। तो अगर हम बात कर लें बच्चे हीट की, हीट इज आल्सो वन ऑफ द फॉर्म ऑफ एनर्जी ना, हीट इज वन ऑफ द फॉर्म ऑफ एनर्जी। अगर कहीं पे भी फ्रिक्शन होता है, जैसे ये हम हैंड को रब करते हैं बच्चे, वेन एवर हैंड विल बी रब, अगर हैंड को रब करेंगे बच्चे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हैंड को रब करने से हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी ना, हीट एनर्जी रिलीज होगी। हाँ, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने तो मैकेनिकल वर्क डन किया था ना, हाथ को केवल रब किया था, दिस वाज द मैकेनिकल वर्क डन, और किसमें ये कन्वर्ट हो गया बच्चे, हीट एनर्जी में ट्रांसफर हो गया कि नहीं हो गया, है ना। सो ये हीट एनर्जी इज वन ऑफ द फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट एनर्जी is one of the form of energy. This is produced by the mechanical work done or means different source. या किसी चीज को जला देंगे तब भी हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी बच्चे, है ना। तो कहने का मतलब ये हो गया कि अगर वर्क एनर्जी थ्योरम से ये कहें बच्चे, वर्क एनर्जी थ्योरम से ये कह सकते हैं कि केवल और केवल जितना भी वर्क डन करेंगे वो किसके फॉर्म में हो जाएगा आपका, जितना भी वर्क डन करेंगे वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फॉर्म में। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में अगर नहीं हो पाया तो इसका मतलब हीट के फॉर्म में क्या हो गया, उड़ गया ना, उड़ गया, है ना। जितनी एनर्जी अगर लॉस होगी इसका मतलब हीट के फॉर्म में चला गया। कहने का मतलब किसी चीज को अगर आप धक्का दीजिए तो जितना वर्क डन कर रहे हैं धक्का देने में वो सारा का सारा काइनेटिक एनर्जी में होना चाहिए, लेकिन कुछ न कुछ हीट के फॉर्म में निकलेगा। अगर निकल गया तो इसका मतलब वो उतना जितना वर्क डन किया था वो सारा का सारा काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करने में नहीं लगा, कुछ उसको हीट प्रोड्यूस कर गया, है ना। यस सर। दूसरा होता है बच्चे केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी का मतलब वही चीज हो गया ना कि अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि जब दो फ्लिंट स्टोन को अगर हम लोग रब करते हैं तो हीट प्रोड्यूस हो जाती है ना। तो अगर हम किसी चीज को जला दें,
है ना। अभी तक तो हमने हीट एनर्जी बात की है बच्चे कि मैकेनिकल से कैसे हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर किसी चीज को जला दें तो वहां पे केमिकल रिएक्शंस होते हैं ना। अगर केमिकल रिएक्शन हुआ मतलब किसी का वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में चेंज हुआ किसी चीज का, जैसे मैच स्टिक होता है ना, ये क्या करता है, मैच स्टिक इग्नाइट्स इनटू अ ब्राइट फ्लेम व्हेन स्ट्रक अगेंस्ट स्पेशली प्रिपेयर्ड केमिकल सरफेस। अगर ऐसा होता है तो उस केस में क्या हो जाता है बच्चे, उससे ये हो जाता है कि वो जो केमिकल था वो बर्न किया तो क्या दिया आपको, केमिकल एनर्जी दिया कि नहीं दिया, है ना। यही चीज आपका फायर क्रैकर्स में भी होते हैं बच्चे। जो पटाखे अभी आप लोग दीपावली में खूब जलाए होंगे या डिफरेंट डिफरेंट, तो उसमें भी केमिकल एनर्जी की बात हो रही थी। तो केमिकल Yes, sir. एनर्जी कहां से होती है, कहां से अराइज होती है बच्चे, जब कोई मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करता है किसी केमिकल रिएक्शन में, तब जाके क्या होता है, केमिकल एनर्जी रिलीज होती है। तो दूसरा हो गया बच्चे केमिकल एनर्जी। अब ये केमिकल एनर्जी बच्चे दो तरह की अगर देखा जाए तो इसमें कौन कौन सा कह सकते हैं बच्चे, एक एक्सोथर्मिक बात कर सकते हैं और दूसरा क्या बात कर सकते हैं बच्चे, एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक। हाँ, तो अब ये केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा बच्चे, एक्सोथर्मिक का मतलब जहां से हीट रिलीज होती है, एंडोथर्मिक का मतलब जहां पे हम लोग हीट प्रोवाइड करते हैं। दोनों अलग अलग हैं। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या हो गया बच्चे, जहां पे क्या हो जाता है, हीट रिलीज होती है। एंडोथर्मिक का मतलब क्या हो जाता है बच्चे, जहां पे हीट हम प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा बच्चे कौन सी एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है। कौन सी एनर्जी होती है बच्चे, है ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है ना। हाँ जी, घर में बिजली जलाते हैं ना, नहीं जलाते। यस सर। तो लाइट जो हो जाती है वो कौन सी एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो होती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हाँ, तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बेसिकली हमारे किस काम में आ जाती है, कह सकते हैं कि फैन ग्लो करता है, मैकेनिकल वर्क करने के काम में आता है। मतलब इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हम डिफरेंट डिफरेंट काम करते हैं बच्चे। अच्छा, आइंस्टीन ने एक और थ्योरी दिया था बच्चे, इक्विवेलेंस ऑफ मास एंड एनर्जी। उन्होंने ये कहा था बच्चे कि अगर कहीं ना कहीं मास का लॉस होता है तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बच्चे, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। इक्वल टू mc स्क्वायर से इन्होंने कहा था, ये देखिए इक्विवेलेंस ऑफ मास एंड एनर्जी। तो पहले तो हम लोग पढ़ते थे बच्चे कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लेकिन ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इक्विवेलेंस ऑफ मास एनर्जी। मतलब अगर मास में कहीं कमी आया, मास अगर कम हुआ तो किसमें कन्वर्ट हो गया बच्चे, एनर्जी में। अगर एनर्जी में कहीं कमी आया तो किसमें कन्वर्ट हो गया बच्चे, मास में कन्वर्ट। mass. तो अगर मान लीजिए बच्चे कि 1 किलोग्राम मैटर से कितनी एनर्जी एसोसिएटेड होती है, याद रखिएगा 1 किलोग्राम 1 किलोग्राम एनर्जी एसोसिएटेड विद 1 किलोग्राम, ऐसे लिखिए, एनर्जी एसोसिएटेड विथ 1 किलोग्राम। बच्चे कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है 1 किलोग्राम ऑफ मैटर, कोई भी अगर 1 किलोग्राम मैटर रहेगा उससे एनर्जी कितना एसोसिएट होगा, इज इक्वल टू mc स्क्वायर करेंगे बच्चे, और E की वैल्यू निकालना है तो मास की वैल्यू 1 किलोग्राम, C हो गया 3 इंटू 10⁸ का होल स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा बच्चे, 9 इंटू 10⁻16 जूल। दिस मच एनर्जी इज एसोसिएटेड विथ 1 किलोग्राम ऑफ मैटर। ओके, नेक्स्ट होता है बच्चे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चे, न्यूक्लियर एनर्जी। ये क्या होता है बच्चे, क्लास 10th में आप लोगों ने पढ़ा है न्यूक्लियर एनर्जी। ये दो प्रोसेस होते हैं ना, एक होता है क्या, फिजन, और एक क्या होता है बच्चे, फ्यूजन। ये भी किससे रिलेटेड होता है बच्चे, न्यूक्लियर एनर्जी इज किस पे बेस्ड होता है, बेस्ड ऑन मास एनर्जी इक्विवेलेंस। किस पे बेस्ड होता है, Mass energy equivalence. हाँ, मास एनर्जी इक्विवेलेंस पे बेस्ड होता है, इक्विवेलेंस। और जो न्यूक्लियर एनर्जी दो तरीके से आती है बच्चे, वो कौन कौन से हैं जरा देख लेते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी आने के तरीका क्या है कि एक तो हो जाता है बच्चे क्या, फिजन होता है, और एक क्या हो जाता है, फ्यूजन होता है। एक फिजन होता है और एक क्या होता है बच्चे, फ्यूजन। ये एक फिजन हो गया बच्चे और दूसरा क्या हो गया, फ्यूजन हो गया।
तो फिजन का मतलब क्या हो जाता है बच्चे, कोई हैवियर न्यूक्लियाई हो और उसमें किसी एक एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल ले जाए और वो डिसइंटीग्रेट हो जाए तो उसके साथ बहुत सारी एनर्जी निकलती है। और फ्यूजन क्या होता है बच्चे, जब स्मॉल न्यूक्लियाई होता है और वो कंबाइन होके फॉर्म करे बिगर न्यूक्लियाई को, तो वो कौन सी होती है बच्चे, वो फ्यूजन होता है, फ्यूजन एनर्जी निकल, न्यूक्लियर एनर्जी। तो बच्चे फिजन कहाँ होता है, फ्यूजन कहाँ होता है, ये भी समझ लीजिए बच्चे, याद रखिएगा। फिजन के बेस पे थर्मोन्यूक्लियर प्लांट्स हैं हमारे कंट्रीज में, थर्मोन्यूक्लियर प्लांट्स अवेलेबल हैं किसके बेस पे, फिजन के बेस पे। लेकिन फ्यूजन बेस्ड थर्मोन्यूक्लियर प्लांट्स नहीं है, क्योंकि ये फ्यूजन कराने के लिए एक फिजन पहले कराना पड़ जाएगा, तो मतलब उतनी एनर्जी को आप कन्फाइन करेंगे तब जाके आप फ्यूजन करा सकते हैं। तो फ्यूजन होता कहाँ है बच्चे, फ्यूजन टेक्स प्लेस इन द सन। सन एनर्जी बनती है ना, वो फ्यूजन के कारण ही बनती है बच्चे। दो हाइड्रोजन मिलके हीलियम का फॉर्मेशन करते रहते हैं और ये कंटिन्यूअस चलता रहता है ना। तो ये एनर्जी के बारे में थोड़ा सा आइडिया था, मैंने आप लोगों को एनर्जी के बारे में आइडिया दे दिया, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में मैंने बताया बच्चे। तो नेक्स्ट टर्न पे कल जब हम लोग कनेक्ट होंगे, जो हमारा टाइम है 3 बजे का, 2:20 का जो टाइम है हमारा कल का, तो कल हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चे पावर के बारे में और कोलिजन के बारे में। कल ये चैप्टर विल फिनिश दिस चैप्टर। ओके, फॉर टुडे हम लोग यहीं तक रखेंगे। हाँ, कुछ चीजें आपके एनसीईआरटी में जरूर दिया बच्चे, उसको आप लोग जाइएगा कि कहाँ कितनी एनर्जी एसोसिएटेड होती है, एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, आपकी पलक झपकती है तो उसमें कितनी एनर्जी कंज्यूम होती है, थंडर स्टॉर्म होता है तो कितनी एनर्जी कंज्यूम होती है, तो इन सबके थ्रू जाइएगा। ओके, so that's it for today. We'll be connecting tomorrow and we'll discuss further. Okay, Thank you, sir. thank you very much. Bye, sir. Bye bye.